السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ پولیس کی زیادتی پر MBT کا سخت رد عمل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دورے شیخ پیٹ ڈویژن کے موقع پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امجد اللہ خان کا بیان۔ مجلس بچاؤ تحریک MBT کے ترجمان امجد اللہ خان نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے شیخ پیٹ ڈویژن کے دورے کے دوران پولیس کی زیادتی کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹولی چوکی پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر نے بغیر کسی وارنٹ کے سینئر BRS کارکن اور سابق ریاستی وقف بورڈ ممبر وحید احمد ایڈوکیٹ کے گھر میں زبردستی داخل ہو کر تلاشی لی۔ پولیس نے نہ صرف ان کے گھر بلکہ ان کے بھائیوں کے ملحقہ مکانات کی بھی تلاشی لی، حتیٰ کہ باتھ رومز اور اسٹور روم تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ امجد اللہ خان نے بتایا کہ پولیس کی اس کارروائی کے دوران وحید احمد کے عمر رسیدہ والدین اور کم عمر بچوں کو بھی ہراساں کیا گیا، جبکہ ان کے 2 بھائیوں کو حراست میں لے لیا گیا، جنہیں بعد میں سابق MLA عامر شکیل اور جیون ریڈی کی مداخلت کے بعد رہا کیا گیا۔ MBT ترجمان نے کہا کہ ریونت ریڈی مسلمانوں میں خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کانگریس کے خلاف ووٹ نہ دیں۔ انہوں نے پولیس سے سوال کیا کہ کیا غیر مسلم سیاسی کارکنوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا یا صرف مسلم کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا۔ امجد اللہ خان نے ایڈوکیٹ برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ وحید احمد ایڈوکیٹ کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی پر توجہ دے۔ کیا کانگریس کیوں وحید احمد کو ٹارگٹ بنایا گیا جبکہ وہ ایک وکیل ہے؟ تو میں تمام وکلا برادری سے یہ گزارش کروں گا کہ کل جو ہے اس کا پروٹیسٹ کریے اور چیف الیکٹرل آفیسر کو تمام وکلا کی طرف سے اور مسلم تنظیموں کی طرف سے یہ نوٹ میں لانا چاہیے کہ یہاں پر حیدرآباد کی پولیس جو ہے کانگریس کے پریشر میں ہے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہے یہاں پر بول کر۔ تو ایک تو وہ سینئر لیڈر ہے BRS کے، سابقہ وقف بورڈ ممبر ہے اور ایک وکیل ہے بیچارے، انہوں خود کئی لوگوں کے کیسز میں جا کے چھڑاتے، تو ان کے کانگریس حکومت کی تائید کرنے والی تنظیم تحریک مسلم شابان کے صدر مشتاق ملک نے تلنگانہ کانگریس کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے کانگریس ہے تو مسلمان ہے بیان کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیان راہل گاندھی جس کانگریس کی بات کرتے ہیں اس کانگریس کے وزیر اعلیٰ کا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ نے 22 مہینوں میں اپنا اصلی رنگ دکھایا ہے اور ان کی اصلیت سامنے آئی ہے۔ دیکھیے تحریک مسلم شابان کے صدر مشتاق ملک کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ طرح مسترد کرتے اور یہ جو بیان ہے دراصل یہ بیان ایک سلجھے ہوئے اور ایک راہل گاندھی جس کانگریس کی بات کر رہے ہیں اس کانگریس کے چیف منسٹر کا بیان یہ نہیں لگتا ہے۔ اب میرے اشارے کو آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے اپنا رنگ بدلا ہے اور جس طرح سے یہ گزشتہ 22 مہینوں میں اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے اس پر تو خیر میں بات کروں گا، مگر یہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے راموجی گروپ کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر CH کرن نے خوش دلی سے ملاقات کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو اس مہینے کی 16 تاریخ کو منعقد ہونے والے راموجی گروپ یوم تاسیس کی تقریبات کے حصے کے طور پر منعقد ہونے والی راموجی ایکسلنس ایوارڈز پریزنٹیشن تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا۔ جوبلی ہلز کے شیخ پیٹ ڈویژن میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب مقامی BRS قائدین نے الزام لگایا کہ پولیس نے ان کی رہائش گاہوں پر چھاپہ مار کر خواتین اور بچوں کے ساتھ ہراسانی کی۔ تفصیلات کے مطابق پولیس اہلکاروں نے BRS لیڈر ایڈوکیٹ وحید اور ڈویژن سیکرٹری شکیل اور ان کے بھائی عقیل کے گھروں میں داخل ہو کر خواتین اور بچوں کے ساتھ نازیبا برتاؤ کیا۔ اطلاع ملنے پر سابق بودھن MLA شکیل عامر اور دیگر BRS قائدین فوری طور پر موقع پر پہنچے اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے پولیس کے رویے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے اختیارات کا غلط استعمال اور شہری حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ BRS قائدین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ واقعے کی فوری تحقیقات کرائیں، ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی دوبارہ تکرار نہ ہو۔
आपके लिए हम है ना, हम आए ना बेटी, हम लोग आए ना। छोटा बच्ची है, क्या बोला पकड़ लिए बेटे, क्या नहीं वहाँ है ना, बोला बोला पकड़ लिए, नहीं आ जाते बेटा, आ जाते अभी, आ जाते अभी, आ जाते, आ रही बेटा है ना, बेटी हम आए ना उसके लिए, हम लोग आए पूरा 200 लोग आए, आधे घंटे में आ जा रहे, आधा घंटे में आ रही बेटी। नहीं हम लोग आए ना, तो फिक्र शकील भाई, शकील मालूम है ना, बोधन का कुछ भी नहीं बेटा, मत रो बेटी है ना। हम आ गए ना बेटी, ये वीडियोस है पता है। देखिए वाह वाह, देखिए पुलिस का जुल्म देखिए, मासूम बच्चियां, मासूम मुसलमान बच्चियों को किस तरीके से सताया जा रहा है, टॉर्चर बगैर किया जा रहा परमिशन का अंदर जा है। रहे, ये घर के यहाँ अंदर के जो घुसा टोली रहे। चौकी का सीआई है, नस्ले क्या बोलना उसको नहीं मालूम है, लेकिन जो जुल्म मासूम बच्चों पे किया जा रहा है, मैं तमाम मोमिन भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आवाज उठाइए। आपके घर में कोई माँ बहन और छोटे बच्चों के साथ ये पुलिस जिस तरीके की हरकत कर रही है, अगर ये हरकत करेगी तो ये क्या काबिले बर्दाश्त है? आप लोग बताइए। पर्दा नशीन माँ बहनें घर में है, उनके साथ आके इतनी जुल्म और बदतमीजी की जा रही है। ये किस तरीके की बदमाशी कर रहे हैं यहाँ के पुलिस वाले? हाँ, ये अंधा कानून है पुलिस का। ऐसे मासूम बच्चों को सताया जा रहा है, घर में औरतों को टॉर्चर किया जा रहा है, बगैर परमिशन का बेडरूम में घुस जा रहे। देखो ये फोटो देखो, वीडियो देखो। चूड़ियां पहने हुए रहे तुम लोग, जो मर्डरा कर रहे उन लोगों को नहीं कर रहे, चूड़ियां पहन के बैठे रहे तुम लोग, मासूम औरतों के ऊपर जुल्म करते रहे। देखो मासूम बच्चों की हालत देखो, रोटी हैबत देखो, ज़ईफ माँ बाप, 80 साल 85 साल के माँ बाप है, उनके हार्ट पेशेंट उनके घर में आके जुल्म कर रहे। ये चला रहे कांग्रेस गवर्नमेंट, तुम लोग गुंडागिरी कर रहे, गुंडागिरी कर रहे, गुंडागिरी इलेक्शन हाँ, हर जगह पुलिस का इस्तेमाल कर रहे, तुम्हारे बाप की जागीर समझे रहे। एक माँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि परानपुर असेंबली की गलियों, चौकों और पंचायतों में एक ही बहस है, इस बार AIMIM को कामयाब बनाना है। बिहार इंतखाबात परानपुर असेंबली में AIMIM के उम्मीदवार आफ्ताब आलम की हिमायत में एक तारीखी जलसा आम मुनक़िद हुआ, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की और खिताब किया और आवाम से अपील की कि वो 11 नवंबर को पतंग के निशान का बटन दबाएं ताकि AIMIM को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जा सके। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग के दौरान राष्ट्रीय जनता दल RJD ने इल्जाम लगाया कि BJP कारकुनों ने उसके एक कारकुन पर चाकू से हमला किया। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तहरीर किया। हार की हताशा में कारकुनों ने इसके कारकुन पर चाकू से हमला किया है। भाजपाइयों की गुंडागर्दी शुरू। मरीचा चौक सराय में RJD कारकुन पर BJP के गुंडों और उसके भाई ने चाकू से हमला किया। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि इन मुजरिमों की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए ताकि कमीशन अपनी गैर जानिबदारी साबित कर सके। RJD ने एक और पोस्ट में दावा किया कि मुहिउद्दीन नगर असेंबली हलके के बूथ नंबर 106, 107 और 108 पर पुलिस एहलकार मुख्तलिफ घरों में घुसकर वोटरों को बिला जवाज मारपीट और धमकियां दे रहे। पार्टी ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां साफ शफाफ इंतखाबात के उसूलों के मनाफी हैं और वोटरों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही। RJD ने इलेक्शन कमीशन और बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुतालबा किया कि इन वाक़यात की गैर जानिबदाराना जांच की जाए और इंतखाबी अमल में मदाखलत करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। पार्टी ने आवाम से अपील की है कि वो डर के माहौल में भी अपने वोट का हक जरूर इस्तेमाल करें। बिहार में जारी असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग के दौरान राष्ट्रीय जनता दल RJD ने संगीन इल्जाम आयद किया कि महागठबंधन के मजबूत पोलिंग बूथों पर वोटिंग की रफ्तार सुस्त करने के लिए दानिस्ता तौर पर बिजली काटी जा रही। पार्टी ने कहा है कि इस तरह के इक़दाम वोटिंग के अमल को मुतासर करने की बदनीयती पर मबनी कोशिश। RJD ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, पहले मरहले की वोटिंग के दौरान महागठबंधन के मजबूत बूथों पर जानबूझकर वोटिंग की रफ्तार कम कराई जा
रही वक्फे से बिजली काट कर इंतजामिया वोटरों को परेशान कर रही। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि ऐसी धांधली, बदनीयती और तासुब पर मबनी कार्रवाइयों पर फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई की जाए। आरजेडी के इस इल्जाम के फौरन बाद बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने रद्दमल देते हुए इन इल्जामात को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तहरीर किया इल्जामात गलत हैं। बिहार के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर मुनज़्ज़म तौर पर वोटिंग जारी। हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना, शफाफ और बगैर किसी रुकावट के वोटिंग के अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम मियारी प्रोटोकॉल पर अमल पेरा। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की कोई बुनियाद नहीं है। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग के दरमियान राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सदर और साबिक वज़ीर आला लालू यादव ने वोटरों से अपने खास अंदाज में अपील की। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, तवा की रोटी पलटते रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हो गए, अब नौजवान हुकूमत और नए बिहार के लिए तेजस्वी हुकूमत निहायत जरूरी। आरजेडी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर भी वोटरों से अपील करते हुए लिखा गया, याद रखिए तेजस्वी की गारंटी ही आपकी खुशियों की गारंटी है। तेजस्वी यादव जी की गारंटी से ही आपका खानदान तरक्की करेगा, खुशहाल, मजबूत और महफूज रहेगा। किसी भी तरह की बातों में ना आए, सिर्फ सरकारी नौकरी, रोजगार, तब्दीली, सनतों के क़याम और बिहार की तेज रफ्तार तरक्की के लिए ही वोट करें। कांग्रेस लीडर, रहनुमा और साबिक कांग्रेसी सदर राहुल गांधी ने हरियाणा में इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोटों में गड़बड़ी सामने आई। राहुल गांधी ने इंतखाबी नताइज से पहले हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी की वो वीडियो दिखाई जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी हुकूमत बना रही और हमारे पास तमाम इंतजामात हैं। अब इस पर हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने अपना पहला रद्दमल दिया। वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने पंचकोला में कहा, राहुल गांधी मुल्क को गुमराह कर रहे, वो झूठ बोलकर मुल्क को गुमराह कर रहे। वाज़ेह रहे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी का एक वीडियो चलाया जिसमें उन्होंने वोटों की गिनती से 2 दिन पहले कहा था कि बीजेपी जीतेगी और उनके पास एक निज़ाम मौजूद है और सब कुछ इंतजामात कर लिए हैं। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि ब्राज़ीलियन मॉडल ने 10 पोलिंग बूथ पर मुख्तलिफ नामों से 22 बार वोट कास्ट किया। राहुल गांधी ने एक तस्वीर दिखाते हुए पूछा, ये औरत कौन है, इसका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है। इसने हरियाणा के 10 मुख्तलिफ बूथों पर 22 बार वोट दिया और इसके मुतअद्दिद नाम है जैसे सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि और विमला, जबकि हकीकत ये है कि वो ब्राज़ीलियन मॉडल है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हरियाणा के इंतखाबात में उत्तर प्रदेश के बहुत से लोगों ने वोट दिया। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी लीडर डालचंद उत्तर प्रदेश में सरपंच, वो हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी वोट देते हैं। काम करना और लोगों को उसका लाभ पहुंचाना, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है, कांग्रेस का युवराज मुद्दाविहीन हो गया है, मुझे नहीं पता लगता क्या है क्या नहीं। मैं आज उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। समय आएगा मैं जरूर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि उनके पास न कोई मुद्दा है न कोई विषय है। देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। भाई काम के बारे में आप चर्चा करिए कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, परंतु आप इस प्रकार का झूठ फैला करके लोग आपके साथ नहीं आएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी 4 पीढ़ियों ने देश के ऊपर शासन किया। अगर 4 पीढ़ियों के शासन के बाद भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बाबा को झूठ बोलना पड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण। सर, आपका एक वीडियो बिहार की खुशहाली के लिए हर हाल में वोट कीजिए, इन बातों का इजहार तेजस्वी यादव ने किया। आरजेडी लीडर और महागठबंधन के वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने वोटरों से अपील की है कि वो हर हाल में अपना हक रायदही इस्तेमाल करे। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा, बिहार की अगली सिमत आपके वोट से तय होगी, इसलिए जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए वोट डालना फर्ज है। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे रियासत
जमहूरियत के 18 अजला में शुरू हुई। इस मरहले में कुल 121 असम्बली हल्के में शामिल हैं, जहां 1314 उम्मीदवार मैदान में। इन उम्मीदवारों में 1192 मर्द और 122 खवातीन शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले मरहले में 3,75,13,302 वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे। एक मौका जो है आप तेजस्वी को दीजिए, जो 20 सालों में नहीं हुआ है उसको हम लोग जो है 20 महीनों में करके दिखाएंगे। आप सब लोगों को हमने पहले भी कहा कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है, जो कह रहा है वो ज़रूर करेगा, और जो भी हमने प्रण पत्र में आप लोगों से वादा किया है उस पे हम ज़रूर खरे उतरेंगे और बिहार को नंबर 1 ज़रूर बनाएंगे। बस एक मौका आप बिहार की जनता से हम चाहते हैं, बिहार की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, आपकी तकदीर को बदलना चाहते हैं। बस एक मौका जो है हम लोगों को मिले। लोकतंत्र के इस पर्व में आप सब लोग जो है बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लीजिए। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग शुरू होते ही कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अवाम से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल में रियासत के लोगों से कहा कि ये वक्त है जब बिहार 20 साल के बाद एक नई सिमत इख्तियार कर सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर दिया कि वोट के जरिए अवाम न सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करें बल्कि रियासत में हकीकी तब्दीली की बुनियाद रखें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पोस्ट में लिखा, जमहूरियत की जन्मभूमि बिहार में वोटिंग का पहला मरहला शुरू हो गया। मेरी बिहार के हर वोटर से अपील कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करे और 20 साल बाद तब्दीली की नई राह बनाए। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि बिहार को ऐसा मुकाम दिया जाए जहां नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज हो, उन्हें बेरोजगारी और नकल मकानी के दुख से निजात मिले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गुज़िश्ता 2 दहाइयों में आवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया गया और अब बेदार आवाम के पास मौका है कि वो अपने वोट से ऐसे हुक्मरानों को सबक सिखाए जिन्होंने बदउनवानी, बद इंतजामी और जंगल राज को तरक्की का नाम दिया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।